A very warm good morning to all my dear students. How are you all? I think you all are fine. Now student, today we started a new chapter. It's a noun. We know that words are noun. First I define you the noun. Word which are used as name of person, animals, places or things are called nouns, or all naming words are nouns. It means that students किसी भी person का name, animal's name, place name or a thing name, they all are called noun. First we have looked at this picture. हमने पिक्चर देखा. पिक्चर में क्या कर रहा है? वन ऑफ द बॉय इज रनिंग, रन कर रहा है. द बॉय इज रनिंग. ओके, हेयर द बॉय इज अ नाउन. ठीक है, बिकॉज द बॉय इज अ पर्सन. नाउ लुक एट द सेकेंड पिक्चर. एंड सेकेंड पिक्चर, this is a picture of a horse. So now we make the sentence, the horse is strong. ठीक है, so now their animal, name of animal is a horse. Now horse is a noun. Now look at this picture. He lives in Delhi. ये बॉय है, यहाँ पे बॉय, और यहाँ पे एक आपका मॉन्यूमेंट बना हुआ है जो कि बॉय क्या दिखा रहे हैं हमें कि बॉय वहाँ पर रहता है. नाउ वी मेक द सेंटेंस, ही लिव्स इन दिल्ली. दिल्ली इज द नेम ऑफ अ प्लेस. ओके, वी नो दैट कि नेम ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड अ नाउन. ठीक है, दैट्स वाई दिल्ली इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन. नाउ हियर टू गर्ल्स. शी हैज़ अ डॉल. ठीक है, इस गर्ल के पास क्या है? डॉल है. सो नाउ डॉल इज ऑल्सो नोन एज नेम ऑफ अ थिंग. ठीक है, डॉल क्या है? किसी चीज़ का नेम है. किसी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, दे आर द थिंग्स ना, तो उसका भी नेम है डॉल. सो नाउ हेयर डॉल इज अ नाउन. ओके, now the word boy is the name of the person. The word horse is the name of an animal. The word Delhi is the name of a place. The word doll is the name of a thing. So that's why they all are nouns. ये सभी क्या हैं बच्चा? Nouns हैं. Now read some other sentences. Okay, in the following sentences the colored word are called nouns. यहाँ पे कुछ sentences हैं जो कि colored हैं, they are called noun because they are the name of a person, animals, places or things. Okay, now first we have see Ashok is a clever boy. Here the name of a boy is Ashok and Ashok is also a person. वो एक boy है, that's why they both are noun. Okay, number second, the dog barked at the thief. Here the dog is an animal and a thief is a person, so that's why they both are nouns. In number 3 sentence, Mumbai is a big city. Here the Mumbai is the name of a place and city is also a place, so now that's why they all are noun. ठीक है. In sentence 4, the pen is on the table. Pen is a thing and the table is also a thing, so that's why they both are noun. In the 5th sentence, the boy ate a mango. ठीक है, बॉय क्या खा रहा है? मैंगो खा रहा है. Here the boy is the name of a person and a mango is also a thing. That's why they both are noun. In the 6th sentence, ships sail on a sea. ठीक है, ships कहाँ sail करती है? sea में. Here ships are the things. sea is also a watering place है. ठीक है, so that's why they both are a noun. In a number 7, lions are found in Africa. Lions is the name of an animal and Africa is the name of a place, that's why they both are a noun. In the 8th sentence, bread is made of a flour.
Here the bread is a thing and floor is also a thing. So that's why they both are a noun. So in this way, students, we define the noun. Noun is the name of a person, place, एनिमल्स और थिंग्स. ओके, सो नाउ हम स्टूडेंट्स हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हमारे पास आते हैं, दे आर कॉल्ड नाउन. वो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं. चलिए स्टूडेंट, हम इसका एक एक्टिविटी पोर्शन आपको करके दिखाते हैं. नाउ स्टूडेंट, लुक एट दिस पिक्चर. ये पिक्चर हमें देखनी है. इसमें हमें जो भी कुछ दिख रहा है, पर्सन हमें जो दिख रहे हैं, ठीक है, हमें थिंग्स दिख रहे हैं, हमें एनिमल्स शो हो रही हैं, हमें बर्ड्स शो हो रही हैं, तो वो हमें लिखने हैं यहाँ पे, बिकॉज दे ऑल आर नाउन्स, क्योंकि वो सभी क्या है? नाउन है. चलिए अब हम पर्सन देखते हैं. हियर अ वन बॉय. चलिए हम बॉय को कोई नेम दे देते हैं. हमने बॉय को नेम दे दिया रोहन. ठीक है, यहाँ पे वन गर्ल, एक और हमें एक गर्ल शो हो रही है. इस गर्ल का क्या नेम देंगे हम? इस गर्ल का नेम दे देते हैं सीता. ओके, नेक्स्ट गर्ल का हमने नेम दे दिया रीता. दे ऑल आर पर्सन. ठीक है, नाउ थिंग्स. अब हम थिंग्स देखेंगे. यहाँ पे वन थिंग इज बैड. ओके, टेबल. ठीक है, नाउ और भी कोई चीज आपको दिख रही है? बुक. ठीक है, दे ऑल आर नाउन्स. नाउ एनिमल्स. एनिमल्स देखेंगे. हमें क्या क्या एनिमल्स शो हो रहे हैं बच्चा? यहाँ पे हमें कैट शो हो रही है. वन एज डॉग. ओके, टू एनिमल्स हमें यहाँ पे शो हो रही हैं. ठीक है, बर्ड्स देखेंगे. बर्ड्स यहाँ पे एक पैरेट है एंड देन नेक्स्ट इज स्पैरो. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, दे ऑल आर नाउन्स. दिस इज आवर एक्टिविटी वर्क, जो कि हमने किया अभी, कि हमने पिक्चर को देखकर, जो हमने पिक्चर देखी उसमें हमें जो जो चीज़ें, जिन जिन चीज़ों के हमें नेम पता थे वो हमने लिखे. एंड द नेमिंग वर्ड्स, जिनके भी नेमिंग वर्ड्स होती हैं, दे ऑल आर नाउन्स. वो क्या कहलाती हैं? नाउन्स कहलाती हैं. ओके, so in that way student, the word you have written in the table, जो भी words हमने टेबल पे लिखी, they all are naming words. वो क्या थे? naming words थे. and now the word that is used to name अ पर्सन, जो वर्ड हम किसी पर्सन के नेम के लिए यूज़ करते हैं, किसी बॉय के किसी प्लेस के नेम के लिए यूज़ करते हैं, किसी एनिमल्स के नेम के लिए यूज़ करते हैं, और किसी थिंग के नेम के लिए यूज़ करते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड नाउन्स. ठीक है, एंड अ नेमिंग वर्ड्स भी हम उनको बोलते हैं. जैसे कि हमने एग्जाम्पल में ले लिया पर्सन. पर्सन में हमारी आंट आ जाती हैं, सिस्टर आ जाती हैं, नाइस आ जाती है, नीस आपकी आ जाती है, पोस्टमैन, डॉक्टर्स, दे ऑल आर पर्सन्स. प्लेसेस में हम देखेंगे, स्कूल हमारे पास हैं, हाउस, पार्क, बाथरूम, फॉरेस्ट, दे ऑल आर प्लेसेस. ओके, एनिमल्स एंड बर्ड्स, दे बोथ आर द nouns. if we using their names, they all are nouns. squirrel, sparrow, dog, cat, giraffe. okay, थिंग्स में हम देखेंगे शैम्पू, फ्लावर, टेबल, मैंगो, कैमरा, वेस, दे ऑल आर थिंग्स. सो नाउ स्टूडेंट, वर्कआउट. अब थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं. अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन दीज पैराग्राफ्स. ये वन पैराग्राफ है जिसमें हमें अंडरलाइन नेमिंग वर्ड्स करनी है. ठीक है, आपने उर्मिला. उर्मिला इज द नेम ऑफ अ गर्ल, सो वी अंडरलाइन इट. उर्मिला इज अ नाउन. ठीक है, lives in Mumbai. Mumbai is the place, so that's why we underline the Mumbai also here. She is a beautiful woman. Here the woman also a person, so that's why woman also a naming word. With thick black hair. Hair is also a naming words. ठीक है, she wears a long skirt. ठीक है, here the skirt is also a naming word. And black slipper. Slipper is also a naming word. She likes to play violin. ठीक है, violin also a thing, so that's why it is also a naming word. किसी चीज़ का नेम है वो. ठीक है, now in the number 2, Toto, the little bear. Here the Toto is also a naming word and a bear is also a naming word. Lives in a forest. Forest is also a naming word, so we underline the forest also here. He often claims trees to eat honey. Trees also are naming words and honey also are naming words. Okay, many tourists are also are naming words, come to see him and click his pictures. Okay, pictures is also a naming words. He poses
for the little boys and girls. Here the boys and girls also are naming words. Now in B sentence, fill in the blanks with the naming words in the words from the boxes. Students, ये exercise मैं आपको explain करा रही हूँ because of that जो मेरी next worksheet है वो इसी से related होने वाली है. That's why listen it carefully. Okay. Samira is a young. Samira क्या है? Young. It's a girl. ठीक है. सो वी राइट हियर गर्ल. हमें क्या लिखना है? ब्लैंक्स में जो हमें ऑप्शंस दिए हैं इनके फिलअप्स हमें फिल करने हैं. तो समीरा एज अ यंग गर्ल. लेट मी टेक आउट एंड डैश फ्रॉम माई पेंसिल बॉक्स. लेट मी टेक आउट एंड इरेजर फ्रॉम माई पेंसिल बॉक्स. वी मस्ट कीप क्वाइट इन द. हमें कहाँ पे कीप क्वाइट रहना है? हमें लाइब्रेरी में कीप क्वाइट रहना है. वी मस्ट कीप क्वाइट इन द लाइब्रेरी. ओके. most kids love. most of the kids क्या love करते हैं बेटा? most of the kids loved. Would they love? They love chocolates. They loved balloons also. ठीक है. but here they love chocolates. There are many dash in the pond. pond में क्या है? बहुत सारे. There are many ducks in the pond. The little girl brought 2 red dash फ्रॉम द बैलून सेलर. जो छोटी सी गर्ल थी उसने 2 रेड क्या खरीदे? बैलून्स. ठीक है. दे ऑल आर नेमिंग वर्ड्स बच्चा. सो दैट्स वाई वी फिल हेयर दीज नेमिंग वर्ड्स. ओके. सो नाउ स्टूडेंट प्लीज कम टू आवर वर्कशीट. अब हम अपनी वर्कशीट को चेकआउट कर लेते हैं बिकॉज वी एक्सप्लेन द नाउन. वी एक्सप्लेनिंग द नाउन. नाउन हमको एक्सप्लेन हो चुका है एंड वी अंडरस्टूड ऑल्सो द नाउन बिकॉज द नाउन इज द नेमिंग वर्ड. ठीक है. जितने भी ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं दे ऑल आर नाउन्स. स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? आपकी जो वर्कशीट है वो आपको डेट एंड डे के साथ राइट डाउन करनी है प्लस टॉपिक. देन आप नाउन का पहले डेफिनेशन लिखोगे. वर्ड्स विच आर यूज्ड एज द नेम्स ऑफ अ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स. या फिर और हम ये भी लिख सकते हैं ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. एग्जाम्पल भी देंगे. सेम एज इट इज आपको राइट डाउन करनी है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. अब हम अपनी एक्सरसाइज में आ जाते हैं. हियर आई एम गिविंग क्वेश्चन नंबर 1 टू राइट 5 नेम्स एंड देयर प्रॉपर कॉलम. आपको प्रॉपर कॉलम में 5 नेम्स लिखने हैं. 5 पर्सन नेम्स आप लोग यहाँ पे लिखोगे. अंकल, आंट, ठीक है, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, या फिर आपकी कोई 5 फ्रेंड्स हैं आप उनके भी नेम यहाँ पे लिख सकते हो. आफ्टर दैट वी हैव राइटेड डाउन द एनिमल्स. 5 एनिमल्स नेम हमको लिखने हैं. देन 5 प्लेसेस हमको लिखनी है. देन 5 थिंग्स हमको लिखनी है. एनिमल्स नेम डॉग, कैट, कुछ भी आप लिख सकते हो. काउ, बफेलो. ओके. प्लेसेस नेम्स मैंने आपको बताया. स्कूल, आपके स्कूल्स हो गए, पार्क्स हो गए, मुंबई, दिल्ली, जो भी आपको पता है, सिटी, कोई भी 5 प्लेसेस आप यहाँ पे राइट डाउन करोगे. देन आप आते हो थिंग्स में. ठीक है. थिंग्स में आपका टेबल, चेयर, बेड, ओके, विंडो, कुछ भी चीज़ें आप यहाँ पे थिंग्स में राइट डाउन कर सकते हो. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें सेंटेंसेस में नाउन को अंडरलाइन करना है. वी नो दैट स्टूडेंट ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं दे ऑल आर नाउन्स. सो हेयर दिल्ली. फर्स्ट सेंटेंस इज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. ठीक है. हेयर द दिल्ली इज द नाउन एंड India is also a noun because they both are the naming words and the nouns. Okay. Now second is a fox show a bunch of grapes. Here fox is the name of an animal and grapes is the things. ठीक है. So they both are the naming words. We underline it. Okay. Number 3 sentence. My sister live in Dehradun. मेरी जो sister है वो कहाँ रहती है? देहरादून में रहती है. Here the sister is also a noun because it is the name of a person, and the Dehradun is also a noun because it's the name of a place. So that's why we underline both of them. In the fourth sentence, the sun is in the sky. Here the sun is the naming word and a sky is also a naming word. So that's why they both are a noun. Number 5th sentence, Ashoka was a great king. Here the Ashoka is the name of a person and king also the name of a person. So that's why they both are a noun. So now अब हम आगे चलते हैं in our question number 3. Except one.
ये जो हमारे पास लिस्ट है इनमें से एक को छोड़ करके ऑल आर द वर्ड्स इन द लिस्ट आर नाउन्स. जितने भी हैं सारे नाउन्स हैं. पिक आउट द वर्ड विच इज़ नॉट इन अ नाउन. हमें इन वर्ड लिस्ट से हमें एक पिक करना है जो नाउन नहीं है. ठीक है. नंबर 1, मिल्क इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड. वाटर इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड. इंक इज ऑल्सो अ नेमिंग वर्ड. स्टैंड, खड़े होना, इट्स नॉट अ नेमिंग वर्ड, सो दैट्स वाई वी राइट डाउन स्टैंड हेयर. ठीक है. मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, आप इसको यहाँ पे लिखोगे. ठीक है. स्टैंड इसको साइड कर दोगे. नाउ इन नंबर 2, अंकल, आंट, काइंड, सन. Okay, uncle is also a naming word, aunt is also a naming word, son is also a naming word, but kind is not a naming word. ठीक है. दयालु, it's not a naming word, so that's why we write down the kind here. In the number 3 sentence, horse, useful, cow, buffalo. Horse is also a naming word. Cow is also a naming word. Buffalo is also a naming word. But useful is not a naming word. That's why we underline it and write down here. Number 4th sentence, grapes, and mangoes, apples. ठीक है. grapes is also a naming word, mango is also a naming word, apple is also a naming word, but and is not a naming word. That's why we underline the and write it down here. Okay. Now in the 5th sentence, door, window, down, roof. Door is also a naming word, window is also a naming word, roof is also a naming word, but down is not a naming word. ठीक है. That's why down, we underline the down and write it down here. Okay student. Now अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू वी कॉल. हम इन्हें क्या कहते हैं. ठीक है. कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो अपने वर्क में फेमस होते हैं, तो उनको एक नेम दे दिया जाता है बेटा. ठीक है. अ पर्सन हु पेंट्स. पर्सन पेंट्स करते हैं डोर्स को एंड विंडोज़ को, दे आर कॉल्ड पेंटर. उनको क्या कहा जाता है बच्चा. पेंटर्स उनको कहा जाता है. वेरी गुड. नाउ इन नंबर 2, अ पर्सन हु गोज टू सी इन अ शिप. ठीक है. सी में जाते हैं शिप से. ठीक है. दे आर कॉल्ड सेलर. ठीक है. क्या कहा जाता है उनको, क्या नेम दिया जाता है, सेलर. नंबर 3, अ पर्सन हु ब्रिंग्स आवर लेटर्स टू आवर होम्स. पर्सन्स जो हमारे घर तक हमारे लिए लेटर्स को लेकर आते हैं, वी कॉल दैट पोस्टमैन. नंबर 4, अ पर्सन हु कट्स आवर हेयर्स. जो हमारे हेयर्स को कट करते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, बार्बर. नंबर 5, अ पर्सन हु ब्रिंग अस मिल्क फ्रॉम द डायरी. जो हमारे लिए डेयरी से मिल्क लेकर आते हैं, दे आर कॉल्ड मिल्क मैन. उन्हें क्या कहा जाता है, मिल्क मैन कहा जाता है. ओके. हियर सम वर्ड्स ऑल्सो. ठीक है. अ पर्सन हु मेक्स क्लोथ्स फॉर अस टू वेयर. जो लोग हमारे लिए क्लोथ्स बनाते हैं, वी कॉल द टेलर. ठीक है. उनको क्या कहा जाता है, टेलर. नाउ वन मोर सेंटेंस मैं भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपका. पर्सन who owns a shop and sell things. ठीक है. दे आर कॉल्ड शॉपकीपर्स. जिनकी अपनी खुद की शॉप्स होती हैं और वो सामानों को बेचते हैं वहाँ पे, दे आर कॉल्ड शॉपकीपर्स. नाउ 8, अ पर्सन हु मेक्स और मेड आर शूज़. जो हमारे शूज़ को मेड करते हैं और बनाते हैं, दे आर कॉल्ड कॉबलर. ओके. मिल्कमैन वाला हमने रीड कर लिया है. नाउ 10th सेंटेंस, अ पर्सन हु कैचेस बैड पीपल. जो बैड पीपल को कैच करते हैं, इट मीन्स दैट थीव्स को कैच करते हैं, दे आर कॉल्ड पुलिसमैन. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैविंग 5 types of noun, but in your class 2nd we are explaining you only 2 kinds of noun. It's a common and a proper. ठीक है. कॉमन एंड प्रॉपर नाउन मैं अभी आपको ओरली थोड़ा सा एक्सप्लेन करवा रही हूँ, बट इन माई जूम क्लास आई विल एक्सप्लेन यू. इट्स वेरी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करवा दूँगी. ठीक है. नाउ common and proper. Students, common noun and proper noun, 2 kinds of noun is there. ठीक है students. Look at this picture students. हमने यहाँ पे जब पिक्चर देखा तो यहाँ पे 2 girls and 1 boy था, लेकिन हमने यहाँ पे boy और girl ना लिख करके उनके नेम्स लिखे. जब भी हम किसी स्पेशल चीज़ का नेम राइट डाउन करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ
प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर हम उन्हें कॉमनली यूज़ कर रहे हैं गर्ल्स, गर्ल्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ अ कॉमन नाउन, ओके। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। नाउ व्हाट्स अ फर्स्ट वी पहले हम क्या देखेंगे, व्हाट्स अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन, हम इन दोनों को डिफाइन करेंगे आपके लिए, ओके। चलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं। अशोक, शिवानीज, दिल्ली, फ्रांस, द ताजमहल, ठीक है, ये कर्नेट सर्कस। बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, बिल्डिंग्स और स्ट्रीट। देखिए द नाउन्स एंड द लिस्ट, जो नाउन है लिस्ट ए में, दे ऑल आर द नेमिंग वर्ड्स, सबके नेमिंग वर्ड हैं बेटा, पर इनके जो नेम्स हैं वो सिर्फ इन्हीं के हैं, वो किसी और के नहीं होंगे। आर द स्पेशल नेम्स, ये क्या है, स्पेशल नेम्स हैं ऑफ द पर्सन एंड द प्लेसेस, किसी भी पर्सन किसी भी प्लेस का स्पेशल नेम होता है, ठीक है। और जब भी ये स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट थिंग, जब भी आपका जो प्रॉपर नाउन है वो शुरू होगा तो हम उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। देखो हमने ए कैपिटल बनाया, एस कैपिटल बनाया, डी कैपिटल है, एफ कैपिटल है, द कैपिटल है, सी कैपिटल है और इधर सी कैपिटल है हमारे पास, ठीक है। दे बिगेन विद अ कैपिटल लेटर, दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जो भी स्पेशल नेम्स होते हैं किसी भी पर्सन के, वी ऑलवेज राइट बिगेन विद इट अ कैपिटल लेटर, दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ओके। और हमारे कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, द नाउन्स ऑफ द लिस्ट बी, बी में जो लिस्ट है, बॉय, गर्ल, सिटी, दे आर नॉट अ स्पेशल नहीं है वो। बॉयज़ बहुत सारे हो सकते हैं, गर्ल्स बहुत सारी हो सकती हैं, सिटीज़ बहुत सारी हो सकती है, कंट्रीज बहुत सारी हो सकती हैं हमारे पास, ठीक है। वी गिव दैम अ टैग ऑफ अ कॉमन नाउन, ठीक है। हम जब भी इनको राइट करते हैं बेटा, वैसे जो भी नाउन्स होते हैं, जब भी नाउन्स आता है हमारे पास तो हम उन्हें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, बट वी राइट ओनली कॉमन नाउन विद अ कैपिटल लेटर, ठीक, सॉरी, प्रॉपर नाउन इन अ कैपिटल लेटर एंड कॉमन नाउन विद अ स्मॉल लेटर। कॉमन नाउन को हम स्मॉल लेटर से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम प्रॉपर नाउन हमारे पास जो भी होगा उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ओके। So now students, here I am giving little bit information of the common noun and proper noun, but in my Zoom class I will explain you totally the common noun and about the proper noun, ठीक है। Now I am ending my video. I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Bye and take care till the next videos.